السلام علیکم، ناول ایکس آفیشل میں خوش آمدید۔ ناول یہ چاہتے ہیں یہ شدتیں جو کہ تحریر کیا ہے سمیرہ شریف طول نے، اس کا جو حصہ اول ہے اس کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ نہ جانے اپنی نصیب پر روتے کتنا وقت بیتا تھا، وہ تو بے جان وجود لیے قالین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا گناہ ہو گیا تھا کہ جس کی سزا مل رہی تھی۔ کلک کی آواز پر نویرہ چونک کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ آنے والے سے اسے نیک توقعات وابستہ نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس کی منتظر تھی جو اس کمرے میں بند کر کے بھول گیا تھا۔ دروازہ کھلنے پر جو چہرہ اسے دیکھنے کو ملا، نویرہ اسے دیکھ کر پتھر ہو گئی۔ ایک پل کو لگا کہ جیسے وہ نیند میں ہے، وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ نویرہ رفت باجی اسے پتھر بنے دیکھ کر فوراً آگے بڑھی تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی عقب میں دروازہ دوبارہ لاک کر دیا گیا تھا۔ آپی انہیں اپنے قریب دیکھ کر وہ ہوش میں آئی تھی، سسک کر ان سے لپٹ گئی۔ رفت باجی نے اسے بازوؤں میں یوں سمیٹا جیسے کسی چھوٹے بچے کو یوں میلے میں کھو گیا ہو۔ ملنے پر ماں آغوش میں سمیٹ لیتی ہے، کہیں پھر نہ کھو جائے۔ بے قراری سے ساتھ بینچ لیا تھا۔ نویرہ تو یوں روئی جیسے سارے ضبط ٹوٹ گئے ہوں، یا جیسے کوئی کسی کے مرگ پر روتا ہے۔ بس کرو، چپ کرو، اب نہیں رونا، میں آ گئی ہوں نا۔ بس اب نہیں۔ انہوں نے اس کے لمبے بال سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے پچکارا تھا، ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بھی صاف کی تھی۔ انہوں نے اسے خود سے جدا کر کے بغور دیکھا۔ حسن گہنا گیا تھا، زرد مرجھایا چہرہ، مسلسل گریہ افزاری سے سرخ آنکھیں، کپکپاتے ہونٹ، بکھرا وجود۔ انہوں نے پھر زور سے سار لگایا تھا، مجھے یہاں سے لے جائیں آپی، میں مر جاؤں گی۔ پورے اعتماد سی نویرہ کے لہجے میں زمانے بھر کا خوف تھا۔ انہوں نے آہستگی سے ساری لایا، اٹھو شاباش، بستر پر بیٹھو۔ کمرے میں اس وقت صرف وہ دو ہی تھی۔ نہیں، اس نے گردن نفی میں ہلائی تو رفت باجی نے خود ہی اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا تو نویرہ پہلے قدم پر ہی لڑکھڑا گئی۔ خود پر بیتنے والی قیامت نے اس کے اندر سے ساری قوتیں چھین لی تھی۔ نہ جانے کب کی بھوکی تھی، بھوک، پیاس، نیند، ذہنی جھٹکوں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ رفت باجی نے اسے بمشکل سنبھالتے ہوئے بستر پر لٹایا تھا۔ نویرہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے انہوں نے آواز دی تو مسلسل بہتی آنکھیں کھول کر اس نے انہیں دیکھا تھا۔ ہوش کرو میری جان، اس طرح ہاتھ پاؤں چھوڑ دو گی تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ کمرے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے کیا؟ کیسی زرد ہو رہی ہے تم؟ ٹھہرو، میں پانی دیتی ہوں۔ انہوں نے احترام میں نگاہ ڈالتے کونے میں پڑے روم فریج کو دیکھا تھا۔ وہ تلخی سے ہنسی، اغوا شدہ لوگوں پر زندگی کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، کھولے نہیں۔ میرے سامنے کوئی من و سلوا بھی ڈھیر کر دے، میں کیا کروں؟ مجھے تو میرے ماں اور بھائیوں کو میری وجہ سے برداشت کی جانے والی ذلت مارے جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں کیا حال ہے ان کا؟ کیسے آئی ہیں آپ یہاں کون لایا آپ کو؟ بستر پر لیٹنے کے بعد وہ اپنے اعصاب بحال کر رہی تھی، پھر رفت کو دیکھنے سے ہی تسلی ہو گئی تھی۔ دل و دماغ کچھ کام کرنے لگا تھا۔ شارق کا دوست ایس پی انجم گھر آیا تھا، اس کے ساتھ آئی ہوں۔ شارق نے بلوایا ہے، یہ ساتھ اسی دوست کا بنگلہ ہے، دونوں باہر ہی ہیں، مجھے اندر بھیجا ہے، نویرہ اذیت سے کہہ رہی تھی۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، پولیس تک ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ اسے لگا جیسے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ نبیل اور ساجد ہمارے ہاں آئے تھے، پھر ان کے ساتھ ہی تمہارے ہاں گئی تھی۔ ظاہر ہے خالہ ماں ہے۔ ذلت و رسوائی گھر کے دروازے پر کھڑی ہو تو کیا حالت ہوتی ہے؟ نہ کوئی مرتا ہے نہ جیتا ہے۔ دکھ ہو رہا ہے شارق پر، ذرا اتنا کچھ کر گزرے گا تم پر اتنی بڑی قیامت بیت گئی اور تم نے کسی کو بتایا تک نہیں، کچھ کہا ہوتا۔ خار رہی صحیح، راہ تو نکال ہی سکتے تھے، کم از کم اس ذلت سے تو بچ جاتے۔ انہیں شاید سب خبر ہو گئی تھی۔ نویرہ سختی سے آنکھیں میچ گئے۔ رفت باجی نے اٹھ کر فریج کھولا، فریج بھرا ہوا تھا کھانے پینے کی چیزوں سے، فروٹس، دیگر اشیاء۔ انہوں نے سیب نکال کر دیے، چھری تلاش کے باوجود کہیں نہیں ملی۔ وہ ویسے ہی بستر پر آ بیٹھی، وہ نویرہ کو سیب کھانے پر آمادہ کر رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل انکاری تھی۔ نہیں آپی، ضد نہ کریں، مر جانے کے علاوہ کچھ بھی صحیح جی نہیں چاہ رہا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ انہوں نے سیب کی ٹوکری ٹیبل پر رکھ دی تھی، کمرے کا جائزہ لیا۔ لگژری آسائشات سے سجا کمرہ، اپنے مالک کی امارات کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ شارق زمان کو آتے دیکھ کر رفت نے غصے سے دیکھا تھا۔ جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اس خوبرو بھائی کا منہ تماچوں سے سرخ کر دے، مگر اندر کا ابال اندر ہی دبانے پر مجبور تھی۔
मिल लिया नवेरा से, हो गई तसल्ली। वो बिस्तर पर दराज नवेरा को देखते हुए मुस्कुराकर इससे पूछ रहा था। इन्होंने अपने जब्त पर बमुश्किल कंट्रोल किया। खुदा का खौफ करो शारिक, क्या बिगाड़ा है इस बेचारी ने तुम्हारा? क्यों मारने पर तुले हुए तुम इसे? हालत देखो इसकी, इससे बुरी हालत इसकी माँ की है। आंखों से देख कर आई हूँ कैसी तड़प रही है वो बेटी के लिए। कोई पत्थर भी हो तो देख कर मोम हो जाए। इनकी आवाज रुंध गई थी। आपको मैंने नसीहतों के लिए नहीं बुलवाया, नवेरा के लिए बुलवाया। समझाएं इसको। अब जो हो चुका है भूल जाए। मैं आखिरी कदम उठा चुका हूँ, वापसी का रास्ता नहीं है इसके पास, और मेरे पास तो पहले भी नहीं था। कुछ खिलाएं पिलाएं, रात तक बहाल करें इसे। रात को तकरीब तय है। फोन पर सारा कुछ बता तो चुका हूँ। नवेरा उठकर बिस्तर पर आई थी। पथराई निगाहों से शारिक जमान को देखे गई। टंगे बिस्तर से नीचे लटकाए वो गुमसुम सी बैठी थी। रिफत की आमद से वो कुछ पुरुम्मीद हुई थी। अब जिंदान से वापसी की कोशिश होगी, मगर ये साथ तो सब रास्ते ही बंद कर चुका था। भला जालिम से भी रहम की तवक्को की जा सकती है? शारिक, ऐसे कैसे हो सकता है? खानदान का मामला है, बात बहुत बढ़ जाएगी। हम दरमियानी राह भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तुमने ये इंतहाई कदम उठा लिया, मगर ये उठता हुआ कदम वापस भी तो जा सकता है। मसलन कैसे? वो ठंडे ठार लजिम, मैं नवेरा और खालाजान को समझाऊंगी, फारूक चचा को दरमियान में लाऊंगी। इस तरह तो सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है, बात सलीके से निपट जाएगी। खालाजान को मजबूर करूंगी कि वो नवेरा तुम्हारे साथ रुखसत कर दें, और आपके कहने पर वो ऐसा कर लेंगे तो और क्या। शारिक जमान का जी चाहा इसकी अकल पर मातम करें। बड़ी खुश फहमी है आपको। इसके भाई मुझे देखकर गोलियां मारने को तैयार होंगे, इसे मेरे साथ रुखसत करने को नहीं। आप अपनी अहमकों की जन्नत से वापस आ जाए। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ अपने लिए खुद मौत का फंदा तैयार करूँ। मुझे समझाने से बेहतर है जिस काम के लिए आपको बुलवाया वो सर अंजाम दे। वो तन से हंसता सोफे पर जा बैठा था। नवेरा तो पत्थर बनी दोनों बहन भाइयों के मुकालमे सुन रही थी। तुम्हें जबरदस्ती से क्या हासिल होगा? इसकी हालत देखकर कम अज कम इस पर तरस ही खा लो। रिफत बाजी अब सख्त झुंझलाहट और गुस्से का शिकार हुई थी। शारिक जमान ने नवेरा को देखा तो वो निगाहें फेर गई। हमेशा तरतीब से रहने वाला दुपट्टा इस वक्त कंधे पर था। पुष्ट पर काले स्याह बालों का आबशार इस जर्द मुतरन्नम चेहरे को अजीब सोगवार हुस्न अता कर रहा था। वो मबहूत सा हो गया। गोद में हाथ रखे वो होंठ कुचल रही थी। मजबूरी है, ये छोटी सी नन्ही बच्ची नहीं है कि एक मर्द के तकाजों को ना समझ सके। मुझे अगर फ्रॉड ही करना होता तो ये सारा खड़ाक ना पालता। जान की बाजी लगा रहा हूँ तो सिर्फ इसके लिए। एक औरत को एक मर्द की मोहब्बत चाहिए होती है। क्या नहीं है मेरे पास? दौलत, जायदाद, तालीम, आला पर्सनालिटी और इसकी मोहब्बत का दावेदार दिल। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नवाज होता तो वो भी शायद इतनी मोहब्बत नहीं देता। सर आंखों पर बिठाता, हर तरह के नाज रखने सहने को तैयार हूँ। ये दिल की आवाज है, वरना औरतों की कमी तो नहीं है। नवेरा का जी चाह के इस मोहब्बत के दावेदार का मुंह नोच ले, मार मार कर इसका मुंह सुर्ख कर दे और कहे, औरत की तलब सिर्फ इतनी नहीं होती। औरत की तलब सिर्फ इतनी नहीं होती। इस जैसी बाकिरदार बाहया औरत की तलब इतनी सतही नहीं होती। इससे सिर्फ दौलतमंद खूबसूरत मर्द की तलब नहीं होती। इससे तो मर्द के खूबसूरत किरदार और सीरत की तलब होती है। और अगर ऐसा मर्द मोहब्बत का दावे करे तो औरत इस पर सब कुछ वार देती है। और अगर मर्द ऐसी मोहब्बत की पाकबाजी बाहयाई की तारीफ करे तो वो खुद को ही इस पर वार देती है। मगर इस जैसा सती मर्द भला क्या जानता है मोहब्बत क्या है? चार दीवारी में अपने नफ्स की हिफाजत करने वाली, शर्म हया की पाबंद, अपनी नस्वानियत और पंदार का ख्याल रखने वाली औरत की तलब। चार दीवारी से बाहर रंगों बो के महफिलें लूटने वाला मर्द भला कहाँ जान सकता है? वो कैसे इसे समझ सकता है? इससे मोहब्बत का दावेदार इसकी तलब से ही बेखबर है। आप भी इसको कहें ये यहाँ से चला जाए। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है। ये जो चाहता है वो कयामत तक नहीं होगा। ये क्या जाने मोहब्बत क्या है? इस जैसे रात की तारीकी में काट लगाए गिद्ध भला क्या जाने कि औरत की पाकबाजी और बेहयाई क्या होती है। जो शर्म हया की मालिक अपनी नस्वानियत की पासदारी करने वाली औरत की चादर तार तार करते हैं, मैं इसका ये जुर्म मर कर भी माफ़ नहीं करूंगी। इसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। नफरत थी इसके लहजे में। कुछ देर कबल की कम हिम्मती इस वक्त इस लम्हे जोशो गुस्से से कहीं दब गई थी। निडाल वजूद इस समय महशर समान था। मुझे वापस ना छोड़ाए। सारी उम्र एड़ियां रगड़ रगड़ कर कैद कर दे, तब भी इसे कबूल नहीं करूंगी। पूरी कुव्वत से इसने शारिक जमान को रद्द किया था। शारिक जमान बीचों ताप खाकर इंतहाई मुश्तिल होकर आगे बढ़ाता टांगे लटकाए बैठी नवेरा का बाजू पकड़कर मुकाबिल खड़ा किया था। बकवास बंद करो अपनी, वो पिंगारा था। बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर गुजरे। रिफत बाजी इसके तेवर देखकर दहल गई थी। शारिक छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? शारिक जमान ने रिफत बाजी की तरफ मुत्ताल ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इस वक्त बाइज्जत खड़ी हो
तो कोई तुम्हारा कमाल है, भूल है तुम्हारी। मर्द जितना भी बदकिरदार, किसी भी फितरत का हामिल हो, वो अपने लिए औरत हमेशा पाकबाज ही चाहता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे इल्म है, अच्छा या बुरा। मैं एक गलत कदम का मुर्तकब हुआ हूँ और इसका भुगतान भुगतने को तैयार हूँ। इतने घंटे हो गए हैं तुम मेरे पास हो। गलती एक दफ़ा हुई है, बार बार नहीं। अगर मैं इस वक्त भी महज दिल के बहलाने या शैतान के बहकावे में होता तो अब तक तुम अपना मुंह छुपा रही होती। समझी अहमक बेवकूफ़ लड़की। मर्द अपनी गलती संवारने की कोशिश नहीं करता। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? रिफत तो एक तरफ, नवेरा तक इसकी गिरफ्त से खाइफ हो गई थी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। भरपूर मजामत करके इसने बाजू छुड़ाना चाहा था, मगर इधर तो फलादी गिरफ्त थी और मैं कहीं पर अमल करने वाला हूँ। वो तो खुद एक सेकंड में ही निढाल हो गई थी। इस पिंगार पर वो बेबसी होने लगी थी। शारिक, क्या बदतमीजी है, कुछ तो शर्मो हया करो। सारी घोल कर पी गए हो। रिफत बाजी नवेरा की बेबसी होते देखकर बेकार बैठे। आप बाहर जाकर बैठे, मुझे इससे थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना है, समझाना है। आप तो किसी काम की नहीं, गलती की बुलवाने की। उल्टा ये मुंह को आ रही है। इसी तरह नवेरा का बाजू दबोचे इसने इन्हें चले जाने का कहा था। आप भी? नवेरा मचल उठी थी। मैं नहीं जा रही, तुम निकलो। ख्वामख्वाह बेचारी को तंग कर रही हो। इसकी हालत देखो। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि शारिक को कैसे समझाए। और इस बेचारी ने जो मुझे तंग किया हुआ है, वो शारिक के तेवर देखकर वो पथरा सी गई थी। अंजुम अगले ही पल शारिक किसी को आवाज़ दे रहा था। इसका दोस्त अंजुम फौरन अंदर चला था। तुम आपी को बाहर ले जाओ, इनकी तवाज़ा करो। मैं 1-2 मिनट में आता हूँ। रिफत आपी तो कंग रह गई थी। फिर अगले ही पल अंदाज़ा लगा लिया था कि इसका ललकारना शारिक को जिद दे सकता था। शारिक प्लीज़ इस बेचारी पर रहम करो। ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ, मगर इसको तंग नहीं करना। पहले ही बुरी हालत है इसकी। कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। इन्होंने तंबीह की थी। वो खुलकर हंसा था। काश मैं ऐसी वैसी कोई हरकत कर सकता। फिर बोला, इत्मीनान रखिए, अब ऐसी वैसी हरकत बाकायदा कानूनी कार्रवाई पूरी करके ही करूंगा। इसका मूड पल में बदला था। जलमलाती निगाहों से नवेरा को देखा था। वो अपना बाजू छुड़वाने को भरपूर मचल रही थी। रिफत बाजी के बाहर निकलते ही अंजुम ने इसके इशारे पर दरवाजा बंद कर दिया था। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों ही थे। हाँ, अब बोलो, बड़ी जुबान के जौहर दिखा रही थी तुम मुझे। मुझे भी तो पता चले कैसी होती हैं पाकबाज औरत। वो मुझ जैसे करप्ट इंसान। वो झटका देकर इसे बाजू की गिरफ्त में लेकर वो खासी संजीदगी से बोला था। नवेरा जो पहले ही निढाल थी, इसके तेवर देखकर सहम गई। सहमी ही न जैसी काली स्याह आंखें टपाटप बरसने लगी। बोलो, अब चुप क्यों? रोक सकती हो मेरे हाथ? बोलो। नरम गोश्त पर इसकी आईनी गिरफ्त ही ऐसी थी कि वो बेइख्तियार सिसक उठी। छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। लफ्ज़ टूट टूट कर इसके होठों से निकले थे। दुपट्टा तो न जाने कब का कदमों में जा गिरा था। पुश्त पर बिखरे काले स्याह आबशार ने पूरे वजूद को घेरे में ले रखा था। शारिक चंद सानिया इसे देखता रहा। इसका सिसक कर बिलखना दिल में शिकाव डालता जा रहा था। नवेरा, मुझे गलत समझोगी तो मेरे अंदर के वहशत को आवाज़ दोगी। मर्द कितना भी बुरा हो, वो औरत के मुंह से अपने लिए हमेशा अच्छाई सुनना चाहता है। तुम क्या जानो मेरे लिए क्या हो? आग का समंदर तय किया है तुम्हारे लिए। पागल लड़की, मेरे पागलपन को गलत निगाह से देखोगी तो नुकसान उठाओगी। तुम्हें दिल ने सिर्फ अपना ही नहीं माना, खुद को भी तुम्हारा बनाया है। मैं कल क्या था मुझे नहीं पता। हाँ, तुम्हें ज़िंदगी में शामिल करने के बाद सिर्फ तुम्हारा बनकर रहूँगा। यकीन करो बेएतबार लड़की, तुम्हारा हुसूल मेरे लिए कतई मुश्किल ना था, न कल और ना आज। वो आंखें बंद किए महवे कलाम था। नवेरा किस्मसाई तो वो जैसे होश में आया था। लचकीली शाख की तरह इसके बाजुओं में ही झूल गई थी। नवेरा, इसके साथ इतना बोझ सह नहीं सके थे। इसे आवाज़ खोते देखकर पुकारा था, मगर नवेरा ने शारिक के खौफ से ऐसे बेखुद हुई थी, पुकारने के बावजूद आंखें वाक करने की हिम्मत ना कर पाई थी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। तेरे जहां में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसके वहां नहीं मिलता। नवेरा के इनकार के बाद रज़ा हमीद तो जैसे सारे हौसले हार गया था। दुख ये नहीं था कि जज्बों को पिजराई नहीं मिली थी। दुख ये था कि बहुत चाहने के बावजूद नवेरा के सामने जाकर राज़े दिल आर्यां ना कर सका था। दुख ये नहीं था इसके लिए बैग वक्त शारिक जमान का प्रपोजल आया था। दुख तो ये था कि वो इसे कज़न एक भाई से बढ़कर कुछ समझने को तैयार ही ना थी। ऐसे हालात में जबकि इसे नवेरा का हुसूल बहुत आसान लगा था, नवेरा के इनकार ने इसको अंदर से तोड़ दिया था। वो गुमसुम सा हो गया था। दूसरी तरफ रिमशा जावेद को अगले दिन ही नवेरा के इनकार का सुनकर धचका लगा था। रज़ा के हवाले से नवेरा से लाख बैर खास सही, दिल में बुग़्ज़ सही, मगर इसने इसकी बर्बादी का कभी नहीं सोचा था। हुमैरा को फ़ोन किया था, वो फूट फूट कर रोई।
اس کے آنسو اس کے دل کا بوجھ بڑھا گئے تھے۔ نہ جانے نویرا کی کیا حالت ہوگی، وہ سوچ سوچ کر ہاری تھی۔ خاندان بھر میں جو شادی کے ہنگامے تھے سرد پڑ چکے تھے، ہر کوئی دم ساتھ گیا تھا۔ وہ 2 دن اسی غم میں مبتلا رہی تھی۔ رضا حمید پر نظر پڑی تو وہ نگاہیں پھیر لیتی، مگر اس وقت تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے حمیرہ کو کال کی تھی ارد گرد کے حالات سے آگاہی کے لیے، مگر حمیرہ نے تو اس کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا۔ تمہیں علم ہی نہیں اور اتنا کچھ ہو گیا۔ چچی جان نے رضا کا پرپوزل دیا ہے۔ دوسری طرف نویرا آپی کے لیے شارق بھائی کا پرپوزل آیا تھا، مگر نویرا آپی نے تو سرے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ تو دونوں کا ہی نام سننا نہیں چاہتی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، تمہیں علم ہی نہیں، 2 دن پہلے کی بات ہے اور تم بے خبر ہو۔ شکر کرو نویرا آپی نے تمہیں بنیاد بنا کر انکار کیا ہے، ورنہ صرف شارق بھائی کے پرپوزل کا انکار ہوتا تو یہ پرپوزل ہر صورت قبول ہوتا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا بتاتی رہی تھی، اور رمشا کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ بے شک اسے دیر سے علم ہوا تھا، جبکہ انکار تک ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، مگر شوق میں تھی۔ رضا سے زیادہ اسے پھوپھی اور حمید صاحب پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بھلا اس رشتے کو جانتے بوجھتے کیسے توڑ سکتے تھے؟ اسے پھوپھی کی اپنی طرف سے کی جانے والی حق تلفی نے ششدر کر دیا تھا۔ وہ مسلسل گمسم سی کمرے میں بند تھی، گویا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہو۔ اگر نویرا سچ مچ ہاں کر دیتی تو؟ اس خیال سے اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرا تھا، آنکھیں جل تھل ہو گئی تھیں۔ تو احساس ہوا کہ رضا کی محبت اس کے وجود کو کیسے گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ شام تک وہ اس انکشاف پر حیرت زدہ رہی تھی۔ آنے والا کل اس کے ذہن میں دستک دینے لگا تھا۔ ان کے ہاں مہندی بائیوں کی رسمیں غیر اسلامی اور فضولیات شمار کر کے ادا نہیں کی جاتی تھی۔ ہاں، شادی کی تقریب خاصے وسیع پیمانے پر ادا کی جاتی تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ شرعی عمل سر انجام دیا جائے۔ ولیمہ بھی دلہا والے خاص وسیع پیمانے پر ارینج کرتے تھے۔ آج رات اگر نویرا ہوتی تو مایوں کی تقریب ہونا تھی، جو کہ وہ لوگ کبھی کرتے نہ تھے۔ تاہم مہمانوں کا اجتماع اور کھانے پینے کا اہتمام ضرور کیا جاتا تھا۔ اگر نویرا مان جاتی تو اس وقت نہ جانے اس گھر میں کیا قیامت برپا ہوتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نویرا کے خاندان پر بیتنے والی قیامت پر دکھ منائے یا نویرا کا رضا کے لیے انکار کر دینے پر خوشی۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حمید صاحب اور زبیدہ بیگم خالدہ بیگم کے ہاں چکر لگانے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ رضا نہ جانے کہاں نکلا ہوا تھا۔ پچھلے دنوں سے وہ خاصا ڈسٹرب رہا تھا۔ وہ تو صرف یہی سمجھتی تھی کہ نویرا کے انکار کا دکھ منا رہا ہے، مگر کیا پتا تھا اس کی وجہ ہوگی۔ وہ خاموشی سے لاؤنج میں بیٹھی آنے والے حالات کا تجزیہ کرتی رہی۔ کال بیل کی آواز پر اس نے جا کر دروازہ کھولا تو رضا تھا۔ امی ابو کہاں ہیں؟ گھر میں خاموشی محسوس کرتے اس نے رضا کو دیکھا تھا۔ خالدہ چچی کے ہاں گئے ہوئے ہیں، شاید ان کی طبیعت خراب ہے، اور پھر آج تو ویسے بھی سارے خاندان کے بزرگ ان کے ہاں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے شادی سے انکار، وہ بھی عین شادی کے قریب، کسی قیامت سے کم تو نہیں۔ وہ مزمل و پرملال سی بتا رہی تھی۔ رضا نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا، وہ حقیقتاً رنجیدہ تھی۔ اس کے دل میں غم و اضطراب کی کروٹیں لینے لگی۔ نویرا کی ذات کا اس طرح تشہیر پر اس کا ضد کا طوفانوں سے دوچار ہوا تھا۔ مزید اس کا انکار کسی خنجر سے کم نہ تھا جو اس کے دل کو گاہے بگاہے زخم کر رہا تھا۔ رضا تھکے تھکے انداز میں صوفے پر گرا تو رمشا نے اسے ترہم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں وہ نڈھال سا کافی بکھرا بکھرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے مقابل صوفے پر ٹک گئی۔ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ پھوپھو اور انکل نے تمہارا پرپوزل نویرا آپی کے لیے پیش کیا تھا؟ دکھ تو تھا، مگر لہجے کی آنچ میں سلگتا تاثر۔ رضا نے غور سے اسے دیکھا تو گویا اسے علم ہو گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کے ماں باپ نے حتی المقدور رمشا سے اس بات کی پردہ پوشی کی کوشش کی تھی۔ انکار تو وہ تھا جو ہو چکا تھا۔ خواہ مخواہ اس کا دل خراب ہوتا، مگر وہ حقیقت جان گئی تھی۔ جس نے تمہیں یہ بتایا، اس نے اور کچھ نہیں بتایا؟ نویرا کے انکار کا دکھ تلخی بن کر اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ ہاں، پتہ چل گیا ہے مجھے، مگر نویرا آپی سچ مچ اقرار کر دیتی تو میرا کیا ہوتا؟ پھوپھو سے مجھے ایسی امید نہ ہوتی۔ جب وہ میرے جذبات و احساسات سے باخبر ہیں تو پھر انہوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ وقت و حالات کا تقاضا یہی تھا۔ ایسے وقت میں تو دشمن بھی ساتھ دے دیتے ہیں۔ امی تو پھر چچی جان کا اپنا خون ہے۔ ہاں، تم تو یوں کہو گے ہی، تمہاری مطلب برادری تھی جو ہو رہی تھی۔ تم اس کے اقتدام کو نہیں سراہو گے تو کون سراہے گا؟ آہستہ آہستہ رمشا کے اندر جلن و حسد کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ زبان کی تلخی گواہ تھی۔ رضا نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو پھر؟ پھاڑ کھانے والا انداز تھا۔ اس کا دل پہلے ہی رشتہ ہوا پھوڑا بنا ہوا تھا۔ ایسے میں رمشا کی ضرب انتہائی تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ کینہ-توز نگاہوں سے رمشا کو دیکھا۔ بہرحال نواز بھائی نے اچھا نہیں کیا، مجھے رہ کر نویرا آپی کا خیال آ رہا ہے، بیچاری۔ وہ پھر رنجیدہ ہوئی تو رضا نے سر جھٹک دیا۔ وہ اس وقت اس لڑکی سے اچھی بری کسی بھی قسم کی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھ کر صوفے پر کشن درست کر کے نیم دراز ہوا تھا۔ بہت دکھ ہوا
होगा तुम्हें नवेरा आपी के इनकार पर। इसे शायद चिंगारियों को हवा देने की आदत थी। इसका निढाल मुजम्मिल अंदाज देखकर हमदर्दी भी तंजन के रूप में रंग गई थी। रजा ने जब्त से काम लेते हुए कुछ भी कहने से खुद को बाज रखा था। रिमशा ने इंतहाई बेबसी से नीम दराज वजूद को देखा था। जी चाहा कि झंझोड़ कर इस बेहिस इन शख्स के एहसास को जगा दे, इसे खुद साख्ता और यकतरफा मोहब्बत के शौक मनाने से रोक दे, तलखी से लड़ पड़े या फिर इसकी दिलजोई करे, मगर वो कुछ भी करने से कासिर थी। इस वक्त वो अपने जज्बात समझने से भी कासिर थी कि जिनमें एक तरफ नवेरा के दुख पर गम से दिल फटा जा रहा था, तो दूसरी तरफ अपनी हक तलफी होने के खदशे से खौफ से दिल दो चार हो गया था। इसने बेबसी से रजा को देखा, जो आंखों पर बाजू रखे इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए था। एसपी अंजुम की बेगम इरम जो हर काम में पेश थी, मगर नवेरा की जिद ना टूटने देकर बहुत बेचारगी से दो चार होकर कमरे से बाहर निकल गई थी। रिफत आपी तो दोहरे अजाब से दो चार थी। एक तरफ अजीज तरीन खालाजाद थी तो दूसरी तरफ सौतेला ही सही मगर भाई था। जिस तरह शारिक ने इन्हें यहाँ बुलवाकर नवेरा को राजी करने पर मजबूर किया था, वो बेबस होकर रह गई थी। वो अभी बाहर का चक्कर लगा कर आई थी। दोस्त अहबाब की अच्छी खासी गैदरिंग शारिक जमान इकट्ठी कर चुका था। कुछ देर पहले वो शारिक की मजबूर करने पर अंजुम की बेगम इरम के साथ जाकर नवेरा के लिबास और दीगर जेवरात और लवाजमात लेकर आई थी। इन्होंने कई बार नवेरा को कहा था वो कपड़े चेंज करके बात ले ले, मगर नवेरा तो मरने मारने पर तुली हुई थी। वो तो शारिक जमान की कोई ख्वाहिश पूरी करने की बजाय मर जाने की दुआ कर रही थी। नवेरा मेरी प्यारी बहन, जिद का कोई फायदा नहीं। मर्दों के इस मुआशरे में हमेशा औरत ही हारती है। माँ, बहन, बीवी, हर रिश्ते में वो अपना आप मार कर मर्द की जिद को पूरा करने पर मजबूर हो जाती है। हमारे पापा की मिसाल तुम्हारे सामने। इस कहानी से बेखबर तो नहीं हूँ कैसे इन्होंने खानदान भर की टक्कर लेकर शारिक की माँ से शादी की, मगर क्या फायदा हुआ। ये मर्दों का माशरा है। औरत और मर्द की जंग में जीत हमेशा इसके मुकद्दर में ही रहती है। शारिक जमान तो तुमसे निकाह करना चाहता है, सिर्फ जिद ही नहीं पूरी कर रहा, उम्र भर के लिए अपने घर की जीनत बनाना चाहता है। अपने आप को समझाओ, क्या फायदा हुआ है इस जिद का। अपने घर वालों से दूर तनहा यहाँ हो। इन्होंने हाथ थाम कर समझाना चाहा था। नवेरा ने सख्ती से हाथ झटक दिए। मर जाऊं तो भी इसकी बात नहीं मानूंगी। कितनी आसानी से आप कह रही हैं कि मैं मान जाऊं। और जो ये शख्स मेरे साथ कर चुका है वो, इसने मुझे गलत निगाह से देखा, मैं नज़रअंदाज कर गई, मैं अपनी ज़बान सी गई, किसी से जिक्र तक नहीं किया, और अब तो हद हो गई। और क्या बर्दाश्त करूं। मेरे भाइयों की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मेरी माँ न जाने किस हालत में होगी और किस तरह मान जाऊं। कभी नहीं, मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी या फिर अपनी नब्ज काट लूंगी। अगर किसी ने मुझे मजबूर किया तो इतनी बेबस नहीं हूँ जितना ये शख्स मुझे समझ रहा है। जानता हूँ मैं तुम क्या कर सकती हो। रिफत बाजी ने फौरन पलट कर देखा। दरवाजे में उस्ताद शारिक जमान खान से बिगड़े तेवर लिए खड़ा था। आपा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आपको इसलिए बुलवाया था कि बैठकर वक्त जाया करें। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। बाहर लोगों को बुलवाकर बिठाया हुआ है, इसे तैयार करवाएं। वो अंदर बढ़ आया था। रिफत बैजी तो एकदम गुस्सा आ गया था। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। शायद ही कोई भाई अपनी जुर्म में बहनों को इस्तेमाल करता है। गैरत मर गई है तुम्हारी। आपा प्लीज। इसने इन्हें सख्ती से टोककर नवेरा को देखा, जो बेतासुर चेहरा लिए दीवार पर नजर गाड़े हुए थी। इस कदर लाताल्लुकी शारिक जमान को तैश में मुब्तला करने लगी। सुनो नवेरा, ये निकाह फॉर्मेलिटी है महज तुम्हारी तसल्ली के लिए, वरना तुम मेरे पास आ चुकी हो और यह तसल्ली मेरे लिए काफ़ी है। तुम मान जाओ तो बेहतर है, वरना ज़बरदस्ती करना भी खूब आती है मुझे। शारिक जमान के इस ज़ोम पर नवेरा का जी चाह के मुंह नोच डाले इस गरूर के पैकर का। फिर शायद तुम्हें सुनकर कुछ सुकून हासिल हो। खालदा चची को मैंने कॉल कर दी है, बात कर चुका हूँ इससे। तुम्हारी गैरतमंद भाई मेरी हर बात मानने को तैयार है, इस शर्त के तुम्हें वापस भेज दूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, वापस जाओगी या फिर? नवेरा को लगा जैसे शारिक जमान इसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। रिफत आपा ने भी शारिक जमान को देखा। तमस्खुराना मगर पुरअतमाद अंदाज किसी भी तरह झूठ के अंसर से मावरा था। शारिक, ये क्या मजाक है? इन्होंने टोक दिया। मजाक नहीं, हकीकत है। यकीन नहीं आता तो बात कर लें, बल्कि नवेरा की भी करवा दें, अभी पता चल जाता है। शारिक ने फौरन मोबाइल निकालकर नंबर्स मिलाए थे, साथ ही स्पीकर भी ऑन कर दिया था। नवेरा दिल पर हाथ रखे शारिक जमान को देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम। शारिक जमान ने कॉल रिसीव करने पर कहा था। दोनों पूरी जान से इसे देखे गए। जी मैं तैयार हूँ, मगर आप सुनाएं। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सच होगा? नवेरा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। शारिक, बकवास नहीं करो, यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है, सारा खानदान जमा है हमारे यहाँ। बेशक हमारे और तुम्हारे घर के अलावा नवेरा की गुमशुदगी से मुतल्लिक कोई भी खबर नहीं, मगर कब तक? तुम नवेरा को वापस भेज दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। साजिद भाई बेइंतहा बेचारगी से गोया हुए। और नबील, मैं कैसे यकीन कर लूँ? तुम नबील की फिक्र मत करो, लो तुम अम्मा से बात करो।
साजिद भाई ने मोबाइल अम्मा को थमा दिया। शारिक, मुझे मेरी बेटी दे दो। दे जाऊं? अभी तो कोई भी नहीं जानता, इससे पहले कि बात फैले हम आपस में मामले तय कर लेते हैं। मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, मैं बाकी सबको भी मना लूंगी। बेचारगी भी ही बेचारगी थी, बेबसी की इंतहा थी। एक लम्हे को तो शारिक को भी झटका लगा था, वो तो कुछ और तय किए हुए था, मगर सब कुछ एकदम बदल गया था। मामला मुझे नहीं तय करने, आपकी बेटी को तय करने। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं आपसे किस हद तक ताउन कर सकता हूँ, इसके अलावा हरगिज़ नहीं। नवेरा और रिफत बाजी जो बहुत देख और सुन रही थी चौंकी। शारिक ने रिफत बाजी की तरफ मोबाइल बढ़ाया था। ले बात कर लें और इसकी भी करवा दे, तब तक मैं बाहर का चक्कर लगा लूँ। देखो वकील साहब और मौलवी साहब आ चुके हैं कि नहीं। नवेरा की तरफ एक चट्टी निगाह डालते हुए वो बाहर निकल गया तो वो गुमसुम हो गई थी। न जाने ये शख्स अब क्या तय किए हुए था। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। रिफत बाजी की आंखें भर आईं। नहीं रिफत, नहीं रिफत हूँ, शारिक ने बुलवाया था। शुक्र अल्लाह का, वरना नवेरा के ख्याल से दिल होल रहा था। कैसी है वो बदनसीब। दूसरी तरफ खालता बेगम भी रोने लगी थी। खाला जान प्लीज़ जिद ना करें, नबील भाई और साजिद को कहीं मान जाए, शायद कोई इज्जत की राह निकल आए, वरना शारिक तो निकाह का सारा इंतजाम किए हुए हैं, बस नवेरा ही डटी हुई है। जानती हूँ, बता चुका है मुझे वो सब। नबील और साजिद से मैं कहूँगी वो करेंगे, अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए ये कड़वा घूंट भी भर ही लूँगी, वरना मेरी हीरे जैसी बेटी को रोल दिया शारिक ने। अब कौन ब्याहेगा इसे, वो आबदीदा हो गई। खाला जान प्लीज़ हौसला करें, हमने कभी शारिक का बुरा नहीं चाहा, हमेशा इसे मैंने नबील और साजिद की अहमियत दी, मगर इस वक्त सारा ख़ानदान जमा है, वो रिश्तेदार भी जो अभी तक नवाज से रिश्ता ख़त्म हो जाने से बेखबर थे, शादी अटेंड करने आ चुके हैं। फारूक, रज़िया, जुबैदा, हमीद सब आए हुए हैं। नवीरा का बार बार पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं इनको। नबीला ने यही कहा है कि जोहा के साथ इसके मेके गई हुई है, सुबह तक आ जाएगी, मगर क्या करूं, सारी उम्र कैसे झूठ बोलेंगे हम। शारिक से कहो हमें इसकी हर शर्त मंजूर है, वो जिस किस्म के स्टाम्प पेपर पर भी लिखवाना चाहता है, जैसा भी कहेगा हम लिख देंगे, मगर हमें रुसवा ना करें, या फिर मेरी बेटी को मारकर इसकी लाश भेज दे, मैं सब्र कर लूँगी। खाला जान, रिफत आपी ने दहल कर कहते हुए नवेरा को देखा, जो लब बिंचे बड़े सब्र से देख रही थी। नवेरा कहाँ है, इससे बात करवाओ, मैं समझाती हूँ इसे, जिद छोड़ दे। एक अगवाशुदा लड़की के मुकद्दर में शायद ऐसे ही मर्द लिखे होते हैं। वो फूट फूट कर रोते हुए इन्होंने गोया रिफत बाजी के दिल पर कौन-सा मारा था। शारिक, तुम्हें खुदा समझे, ना हक गजब कमाया तुमने। पहले बहते आंसुओं से इन्होंने मोबाइल नवेरा को थमा दिया था। नवेरा ने झपट कर मोबाइल कान से लगा लिया। अम्मा, रोती बलकती आवाज़ समेत वो लड़खड़ाहट सी गई थी। रिफत आपी ने सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया था। अम्मा, माँ को रोते सुनकर वो सारे जब्त खो बैठी थी। अम्मा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकलवाएं। अम्मा, वो गोया खुद पर इख्तियार ही खो बैठी थी। नवेरा, मेरी बच्ची, रोना नहीं, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्होंने अपने आंसू साफ करके इसे तसल्ली दी, मगर इसे करार नहीं आया। कहाँ से करूँ अम्मा सब्र, मर रही हूँ मैं यहाँ पल पल। रिफत बाजी ने इसे मोहब्बत से बाजुओं के हिसार में लिया था। अम्मा, भला क्या बिगाड़ा था मैंने इस शख्स का, क्यों पीछे पड़ गया है मेरे। वो बिलक रही थी, बिलक ही तो गई थी। दूसरी तरफ अम्मा मुश्किल में गिर गई। औरत बहुत बड़ा फितना होती है, जैसे दौलत और हुस्न होता है। मर्द अपनी कणी पर आए तो कुछ भी कर सकता है, ख़ानदानी नजाबत व इज़्ज़त व आबरू तक मिलिया मेट कर सकता है। मैं तो खुद भी जुर्म पूछ पूछ कर थकी हूँ। वो कहता है वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा करता है, अल्लाह बेहतर जानता है दोनों दिलों के हाल, वही जानता है ये मोहब्बत या वक्ती कशिश। अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर अच्छा करे, एक दाग लग गया है सारी उम्र के लिए। अम्मा की बात की शिकस्त खोर्दगी इसे तोड़ गई थी। नवेरा, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगले ही पल अम्मा का मजबूत लहजा इसे खुद को संभलने पर मजबूर कर गया था। साजिद और नबील इंतकाम में अंधे हो रहे हैं, तुम्हें तो मैं खो चुकी हूँ, अब अपने घर में मजीद आग लगते नहीं देख सकती, ऐसी सूरत में कि जब रखवाला ही चोर निकल आए। नबील और साजिद, कस्मों वादों से मैंने मजबूर किया हुआ, शारिक ज़मान से भी कह चुकी हूँ, कल तुम्हारी नवाज इनकार करके ना भागता, रुखसती करना ही थी। शारिक इस हद तक चला गया है तो अब कोई राह नहीं बचती। शारिक को मैंने राजी कर लिया, निकाह वो तुमसे वहीं करेगा, फिर तुम्हें हमारे पास भेज देगा। कल सारे खानदान के सामने मैं तुम्हें इसके साथ रुखसत करने का वादा कर चुकी हूँ। अम्मा, नवेरा की चीख इसके हलक में ही कहीं दम घुट गई थी। मैं मजबूर हूँ, अभी तो कोई भी नहीं जानता, हालांकि जुबैदा और फारूक वगैरह से भी छुपा लिया है, आपा को भी मना कर दिया है। सिर्फ शारिक और रिफत हैं जो हमारे खानदान के अफराद हैं। अपने सर पर मिट्टी कौन नहीं डालेगा। शारिक जिद पर है, अभी वो तुम्हें अपनाने को तैयार है। कल कलां को कोई बात निकल गई तो मैं क्या लोगों को कहती फिरूंगी। लोग नहीं देखते कसूर किसका है, लोग तो सिर्फ मौजूद देखते हैं।
तुम मेरी लाडली चहेती बेटी हो, तुम्हारी जिल्लत मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी। अभी माँ की मजबूरी समझो, जैसा शारिक कहे कर लो। अम्मा मैं मर जाऊंगी। मर तो हम भी गए हैं जीते जी। अम्मा अब खुलकर रो रही थी। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। शारिक हर हद पार कर गया है, इसे समझाना बजाना बेकार है। तुम ही अकल से काम लो मेरी बच्ची। अपनी माँ को जीते जी मत मारो। इस तरफ से तुम बदगुमान थी या इसने तुम्हारे ऊपर जब हाथ डाला था तो तुम्हें जिक्र करती, हम कोई सद्भाव करते। अब तो तूफान आ चुका है, पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब तो सिर्फ नुकसान की तखमीना लगाने का वक्त हो गया। कुल पूंजी लूट चुकी है, अब क्या करूं। अम्मा ने रोते हुए कॉल बंद कर दी थी। नवेरा मोबाइल बिस्तर पर फेंकते रिफत आपी के गले लगकर ऐसे रोई जैसे कोई अपनी मौत से पहले रोता है, शायद पहली और आखिरी दफा का रोना या फिर सारी उम्र का रोना। खालदा बेगम से बात करने के बाद वो ऐसी गुमसुम हुई थी कि मज़ाहमत इनकार सब भूल भाल गई। रिफत बाजी और एसपी अंजुम की बेगम इरम ने मिलकर इसे तैयार किया। निकाह से 15 मिनट कबल नवेरा अपने सामने साजिद भाई और अम्मा और सादा बाजी को देखकर पहुंचकर रह गई थी। नवेरा अम्मा ने इसे गले लगाकर जो प्यार किया तो नवेरा जो खुद को बमुश्किल संभाल रही थी फिर टूट गई। वो लड़की ही तो थी, एक आम कमज़ोर सी मखलूक। भला इन मतवातर होने वाले हादसात से बिगड़ती ना तो क्या करती। इसके जब्त के लिए यह कड़ा इम्तिहान था। जी चाह रहा था बस मौत आ जाए या दिल बंद हो जाए। आप लोग कैसे आए। शारिक का ही कोई बंदा गया था लेने, शायद कोई दोस्त था। अम्मा ने सजी संवरी नवेरा को देखकर नजरें चुराई तो नवेरा के दिल से होक उठी थी। अम्मा ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। दुआ करें मुझे बस मौत आ जाए। साजिदा बाजी ने तड़प कर इसे देखा तो अम्मा ने इसे यूं बाजुओं में समेट लिया जैसे किसी नागहानी से बचाने को माँ बच्चों को समेट लेती है। बस अब रोना नहीं, सब्र से हौसले से देखो मुझे, मैं भी तो बर्दाश्त कर रही हूँ। अपनी बेटी पर इख्तियार नहीं रहा मेरा। मेरे दुख का कोई अंदाज़ा लगा सकता है। नवाज कालक मल गया है हमारी पेशानियों पर। फिर भी इज्जत की गिरती इमारत को संभालने की तकदो में हम अपना सब कुछ दाव पर लगा रही हूँ। साइदा बाजी ने इसके हाथ थाम कर इसे जब्त करने का इशारा किया था। वो अम्मा के सीने पर सर रखे आंसू बहाती रही। कुछ देर बाद इरम, इसका शोहर और साजिद भाई निकाह ख्वाह के हमरा चले आए थे। इजाबो कबूल के मराइल से गुजरते हुए वो लड़खड़ा गई थी। जिस शख्स की सूरत से भी नफरत महसूस होती थी, उम्र भर के लिए इसके नाम पर मसलूब ठहरी थी। रजिस्टर पर साइन करते हुए कलम कई बार लड़खड़ाया था। साजिद भाई लब बिंचे सारी कार्रवाई देखते रहे थे। निकाह ख्वाह के जाते ही इन्होंने नवेरा को साथ लगा लिया था। शारिक ने इस काबिल तो नहीं छोड़ा, मगर तुम्हारे लिए दुआ है, खुश रहो। कैसा हारा टूटा लहजा था। वो अम्मा के सीने में मुंह छुपाकर ऐसे रोए कि कमरे में मौजूद हर आंख अश्कबार हो गई। रोने से सारा मेकअप जल थल हो गया था। इरम ने सारा मेकअप दोबारा संवारा और फिर इसे थामकर बाहर ले आई। वो बुत बनी इनके अहकामात पर अमल करती रही। अम्मा ने एक गहरी सांस खारिज करके इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। शारिक जमान इस वक्त अपने दोस्तों एसपी अंजुम के फराहम करदा घर में था। दोस्त अहबाब सब वहीं मौजूद थे। इसने ये सारी कार्रवाई अच्छी खासी गैदरिंग इकट्ठी करके सरअंजाम दिलवाई थी। निकाह होने तक वो नवेरा की तरफ से खौफजदा था। अब जबकि निकाह हो चुका था, सजी संवरी नवेरा को सोफे पर लाकर बिठा दिया गया था। वो भी मुतमईन हो गया था। एसपी अंजुम ने इसे भी नवेरा के पहलू में ला बिठाया था। फोटोग्राफर धड़ाधड़ तस्वीरें ले रहा था। अम्मा और साइदा बाजी की आंखें बार बार नम हो रही थी। किस कदर एहतमाम से इसकी जिल्लत और रसवाई का बंदोबस्त किया गया था। शारिक ज़बान ने इसके साथ जो किया था सारी उम्र का घाव था जो शायद ही पड़ता। अपनी इज्जत व वकार का पास था कि वो चुप थे, मगर अंदर तो कयामत की सी मज़ाहमत थी। तस्वीर के सिलसिले में भी खाने का दौर चला था के बाद खानों का दौर चला था। अच्छी लग रही हो। एसपी अंजुम और इसकी बेगम तमाम मेहमानों को दूसरे कमरे में जहां खाने का एहतमाम था ले गई थी। बसिद इसरार वो रिफत बाजी, साइदा और अम्मा को भी ले गई थी। इस वक्त कमरे में दोनों ही थे। शारिक जमान ने झुके सर को ऊपर उठाते भरपूर निगाहों से देखते हुए कहा तो नवेरा ने एकदम नफरत से इसका हाथ झटक दिया। अंदर मर जाने की ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि होंठ कुचल कर रह गई थी। ये शख्स इसकी हयात की सबसे बड़ी आजमाइश था। शायद हाथ झटक देने से तुम मेरे इस इख्तियार से बाहर नहीं हो जाओगे जो कुछ देर कबल निकाह नामे से मैं ये इख्तियार हासिल कर चुका हूँ। भूल है तुम्हारी, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। गजब की फंगार थी। शारिक जमान ने शिद्दत से महसूस किया था, फिर हंस दिया था। नवेरा के जिगर जिगर करते सरापा ने आंखों को चकमगा दिया था। अब तो ऐसे मत कहें, मिसेस शारिक बन चुकी हो। नवेरा बेबसी से रोती थी। दोनों साथ साथ सोफे पर ही बैठे हुए थे। ये एक दरमियाने दर्जे का कमरा था जहां मेहमानों का इंतजाम किया गया था, मगर अब कमरा खाली था। शारिक जमान को इसके वजूद से शम्में फूकती महसूस हो रही थी। इस वक्त तो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। मनचाही दौलत मिल गई थी। निगाहें खेजा कुन हो रही थी। दिल अलवही तराने गाने को मचल रहा था। फतह से मसरूर शादा रक्सा था। जानती हो मैं इस वक्त कितना खुश हूँ। काश तुम अंदाजा लगा सको। मुझ जैसा आशिक सादिक तो तुम्हें जमाने भर में कहीं नहीं मिलना था।
तुम्हारे लिए आग का दरिया पार किया है। दाद नहीं दोगी मेरे हौसले की? नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। देखा कैसे तुम्हारे अम्मा भाई बहन इस निकाह को कामयाब बनाने के लिए चले आए थे। नोवेरा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। वो इस वक्त इस शकील कल्ब की रुदात सुनना भी नहीं चाहती थी। अपनी शिकस्त सुनकर रहे सही औसान भी खता हुए थे। जालिम हमेशा जुल्म करके खुश ही होता है। वो फूट फूट कर रोने की ख्वाहिश में इसने कहा था, ये तो वक्त ही बताएगा कि हम जालिम हैं कि मजलूम। फिलहाल तो मुझे अपना आप इस आशिक शादी की मादिर लग रहा है जिसकी मोहब्बत बारियाब ठहरी हो। इधर तो सरशारी का आलम था, कुछ असर ही ना था, मुतमईन था। नवेरा ने सख्ती से होंठ दांतों तले दबा लिए थे। क्या फायदा इस दीवार से सर फोड़ने का। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो जाएंगे और खालदा चची वगैरह तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी। मैं साजिद और चची से तहरीर लिखवा चुका हूँ। तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाया इन्होंने या तुम्हें मेरे साथ रुखसत करने में कोई वादा खिलाफी की तो मैं अदालत तक चला जाऊंगा। मैं सर धड़ की बाजी लगाकर इस मैदान में कूदा हूँ। तुम्हारे भाई और वालदा को बावर करवा चुका हूँ। अब तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ कि अपने जज्बात के हाथों कहीं तुम खुद को कुछ नुकसान ना पहुंचा लो। अगर तुमने ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो तुम्हारे खानदान को जिंदा दरगोर कर दूंगा। समझ रही हो ना? नवेरा पटी पटी आंखों से इसकी बकवास सुनते हुए, किस कदर कसाब था ये इंसान। कल तुम्हारी रुखसती तय है। अगर तुम्हारी फैमिली तावन करेगी तो तुम्हारी गुमशुदगी और इस निकाह की सारी कार्रवाई खुफिया रहेगी, वरना फिर जो भी होगा इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। नबील की तरफ से मुझे खौफ है मगर मुझे कोई परवाह नहीं। ये निकाह की सारी कार्रवाई कानूनी कवायद के तहत वकूफ पजीर हुई है। एसपी अंजुम तुम्हारे भाइयों पर मुकम्मल गिरफ्त रखे हुए। अगर इन्होंने कोई चालबाजी करने की कोशिश की तो याद रखना इस तरफ से भी अमली कार्रवाई होगी। अपनी बीवी को आपस बेजा में रखने के जुर्म में सीधा जेल भिजवा दूंगा। वो हैरत से खून सफेद होते देख रही थी। ये वकील और निकाह खा कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। तुमसे रिश्ता कायम करना मेरे लिए कोई मुश्किल ना था। इन लोगों को ताउन मेरे लिए तशक्कुर का बाइस है। कल कलां को कोई मसला उठा भी तो मेरी हैसियत मजबूत होगी। ये फोटोग्राफर, ये तस्वीरें, तुम्हारे भाई, माँ और बहन की मौजूदगी, कोई चीज़ भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। अब तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। ये सब मेरे और तुम्हारी फैमिली के दरमियान तय हुआ है, मगर कल तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले आऊँगा। ये जहन में रखना। ये सारी धमकी अमेज गुफ्तगू नवेरा के असाब पर हथौड़े की मानित बरस रही थी। वो नॉर्मल असाब की मालिक ना होती तो भी ये सब इसके असाब को तोड़ बोड़ देता। वो तो पहले ही जब्त के मराहिल से गुजर रही थी। इन धमकी अमेज हदायतों पर सिसकी बढ़ते सोफे की पुश्त गाह पर सर टिकाकर आगे मौन गई थी नवेरा। शारिक को एकदम एहसास हुआ कि इसके असाब पर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल दिया है। इसने अगले ही पल टोन बदलकर पुकारा तो नवेरा ने नफरत से मजीद आंखें बंद कर ली। वो इस शख्स की आवाज़ भी सुनना नहीं चाहती थी। इसने अपने आप को यूं ही बेहवास पड़े रहने दिया। या अल्लाह, बस मुझे मौत आ जाए। बड़ी शिद्दत से इसने अपने परवरदिगार को पुकारा था। मामा ताई जान के इस सारे तर्ज अमल और शदीद रद्द अमल के पीछे क्या मुहर्रकात का कार फरमा है? ऐसी क्या बात है जिसने इनके दिल में मौजूद हमारे खिलाफ नफरत के जहर को इस अंदाज में हम पर उछाला है? ऐसा क्या किया आपने इनके साथ कि आप और आपकी औलाद भी ज़ेर अताब आ चुकी है? जरिश के इस्तफसार पर शाइस्ता बेगम हैरान रह गई थी। गुस्ताखी माफ, मगर मुझे मालूम होना चाहिए। आपने मुझे हमेशा मना किया है कि ताया अब्बू के यहाँ ना जाऊँ। आपने हर बार मुझे ताई अम्मी के तर्ज अमल का हवाला दिया और सख्ती की, मगर क्या हुआ? मैं हर बात आपकी 1000 बार मना करने के बावजूद वहाँ गई हूँ कि मुझे अगर एक तरफ वहाँ की मोहब्बतें अपनी तरफ खींचती थी तो दूसरी तरफ ताई जान के रवैये की वजह क्या है? आप मुझे साफ बात बताने के बजाय मुख्तलिफ बहानों से वहाँ जाने को क्यों मना करती हैं? आपने मुझे इशारों में समझाया, कभी असल वजह नहीं बताई। अगर सब में मेरी हमाकत का हाथ है तो आप बताएं, बाकी सब किस खाते में आते हैं? शाइस्ता हैरानों से शिद्दत देखते गई थी। वो इसे अभी तक कम उम्र नासमझ सी बच्ची समझकर नज़रअंदाज कर रही थी। अपनी तरफ से मुकम्मल एहतियात बरत रही थी, मगर जरिश इस अंदाज में इनके इन अमाल को महसूस करेगी, इनकी तो वहम गुमान में भी नहीं था। इतना कुछ सह कर भी तो मुझे अक्ल आनी है। क्या था? आप मुझे भी वो सारी कथा पहले कह देती जो हादी आपा और कुछ हद तक नौशी भी जानती हैं। इनके कदमों में बैठी, इनके हाथ थामे इसने बहुत खफा अंदाज से इन्हें देखते हुए शिकवा किया था। ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने टालना चाहा मगर वो इतनी ही सख्ती से बोल उठी थी। हरगिज नहीं मामा, आपकी बेटी पर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा। इतना बड़ा बहतान मेरे लिए तो मर जाने का मकाम है। बताएं मुझे, ऐसी क्या बात है जो हादी आपा की ज़ात के बाद अब मुझे भी अपनी लपेट में ले चुकी है? अब की बार शाइस्ता बेगम इनकार नहीं कर सकी। हैरत से जरीश को देखते निगाहें चुरा गई। वालिदैन अगर बच्चों से कुछ पाते हैं तो कुछ सोच समझ कर ही पटबदारी करते हैं। फिर तुम मेरी नज़र में अभी भी कम उम्र जज्बाती सी बच्ची हो। तुम्हें कुछ कह सुनकर तुम्हें रिश्तों से मुतनफ़र नहीं करना चाहती।
तुम ताया की फैमिली से जिस कदर अटैच थी, मेरा नहीं ख्याल था कि तुम्हें ज़हनी तौर पर परेशान करूं। अगर मुझे इल्म होता ये सब भी होना है तो हादी के बाद तुम्हारी तरफ से इतनी गफलत ना बरते। हर चंद के मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ऐसी कोई सूरत हाल ना हो जो तायरा को घटियापन दिखाने पर मजबूर करे। मुझे अंदाज़ा नहीं था हादिया के मामले में तो बात घर में ही दब गई थी। वो तुम्हारी ज़ात के परखच्चे उड़ाती इस तरफ तश्ते अज़बाम हो सकती है। इसकी आंखों में आंसू आ ठहरे थे। जरिश ने मोहब्बत से इनके हाथ मजबूती से गिरफ्त में लिए थे। मैं तो ताहिरा का कुछ नहीं बिगाड़ा था मगर कसूरवार ठहरा दी गई। आबदीदा लहजे में इन्होंने अपने आंसू साफ किए थे। तुमने महराज भाई का घर देखा है? इन्होंने ताहिरा के सबसे बड़े भाई का नाम लिया था। इसने सर हिला दिया तो इन्होंने एक गहरा सांस लेते गुफ्तगू आगे बढ़ाई। ये इस वक्त की बात है जब हम और हमारे ताया यानी जहीरुद्दीन साहब इकट्ठे ही एक ही घर में ऊपर तले रिहाइश पजीर थे। ताया की कुल 6 औलादें मिराज भाई, साबिर भाई, कैसरा, मंसूर, कमरुन्निसा और सबसे छोटी ताहिरा थी। हमारे अब्बा जी के यहाँ सिर्फ हम 2 बहन भाई थे ही पैदा हुए थे। अब्बा जी और ताया जान इकट्ठे ही कारोबार करते थे। शाइस्ता बेगम दूर कहीं खलाओं में खोजते सारी कथा सुना रही थी। जरिश ये सब जानती थी। बड़े सब्र से वो एक एक लफ्ज़ समात में उतार रही थी। अब्बा जी को इनके किसी दोस्त ने अपने साथ शराकत दारी पर बिजनेस करने को कहा था। इस ज़माने में ताया जान और अब्बा जी दरमियाने दर्जे की आमदनी के मालिक थे। अब्बा जी ने तुम्हारे दादा और तुम्हारे खालू अहमद साहब से कर्ज लिया था और फिर कारोबार शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी, खूब मेहनत रंग लाई थी। सालों में हमारे दिन फिर गए। अब्बा जी ने ताया को सारा कारोबार सौंप कर अपने अलहदा से बिजनेस शुरू कर लिया था। हमारे खालू शुरू से ही रईस इंसान थे। दौलत की फरावानी इनके यहाँ शुरू से ही रही थी। लिहाज मुरव्वत वाले इंसान थे। अब्बा जी ने कुछ ही अरसे में इनका कर्ज वापस कर दिया था। तायरा मुझसे उम्र में 1-1.5 साल छोटी थी। जमाल भाई की विलादत के कई सालों बाद ही पैदा हुई थी। मैं और ताहिरा एक ही क्लास में एक ही तालीमी इदारे से तालीमी मदारिस तय करते आगे बढ़ते थे। ताहिरा से मेरी शुरू में अच्छी दोस्ती थी, खूब प्यार होता था हम दोनों में। मिराज भाई की शादी ताया जान ने हमारी कम उम्री में ही करती थी। अलबत्ता हम दोनों FSC में थी जब साबिर भाई की शादी हुई। कैसरा आपा की तबीयत शुरू से ही अजीब थी, हिर्सो तमा से भरपूर। इन्हें मुझसे खुदा वास्ते का बैर होता था। मैं वालिदैन की अखलौती ही नहीं, ख़ानदान भर की लाडली चहेती बेटी थी। ताया की तीनों बेटियों की निस्बत हर कोई मुझे फोकियत देता था और कैसरा आपा को ये बात बड़ी खटकती थी। शुरू में इन्होंने सिर्फ मेरी बातों, मेरे कपड़ों पर तनकीद शुरू की थी, मगर ये सिलसिला बढ़ता चला गया। इन्होंने मेरी तालीम से लेकर मेरे कहीं आने जाने, कहीं से मिलने मिलाने पर भी तनकीद करना शुरू कर दी। हमारे ताया जान तो ऐसी तबीयत के मालिक ना थे और ना ही ऐसी हासिदाना फितरत हमारी ताई मरहूम की थी। ना जाने वो किस पर चली गई थी। महराज भाई से लेकर ताहिरा तक कोई भी कैसरा आपा के तौर तरीकों को पसंद नहीं करता था। इन्हें अपनी मनमानी करने की आदत थी। अपने से छोटी कमरुन्निसा और फिर ताहिरा पर खसूसी रौब रखती थी। ये दोनों इनसे दबती भी थी। इन्हें बंदे को अपने ज़ेर करने का फ़न आता था। वक्त गुजरता चला गया। हमारे अब्बा जी की हैसियत खासी मुस्तहकम हो गई तो अब्बा जी ने इसी घर में अपने हिस्से में नए जदीद तर्ज का बंगला तामीर करवा लिया। हमारी इस इक़दाम से ताया जान की पूरी फैमिली एक अजीब से कम्प्लेक्स का शिकार हो गई। अब्बा जी ने बड़ी कोशिश की ताया जान इनके साथ मिलकर काम करें, मगर इन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना ही होता तो तुम अलग कारोबार शुरू ही ना करते। इनके दिल में कदूरत आ चुकी थी और अब्बा जी इन्हें समझाते रह गए थे कि इस काम में तरक्की की मदारिज ना थी, सो इन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया। अब जबकि वो अपने कदम जमा चुके हैं तो आप दोनों मिलकर काम करने में क्या हर्ज है। मगर ताया जान बड़े अनापरस्त थे। इन्होंने अब्बा जी की बात कतई ना मानी और दिलों में मैल आना शुरू हो गया। वक्त गुजरने का नाम है सो गुजरता चला गया। जमाल भाई जो साबिर भाई के हम उम्र थे, इनका रिश्ता हमने नफीसा आपा से तय किया था। सईद भाई तुम्हारे पापा और खालू जान वगैरह की आमदोरफ्त हमारे यहाँ खासी बढ़ गई थी। पहले वो बहुत कम आते थे, किसी फंक्शन या दावत वगैरह पर ही आना जाना होता था, वो भी सिर्फ खाला और खालू या कभी कभार नफीसा आपा भी आती थी। तुम्हारे ताया और पापा अपनी तालीमी मसरूफियात की वजह से कम ही कहीं आते जाते थे। नफीसा आपा का रिश्ता तय होने के बाद आमदोरफ्त बढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सऊद की दिलचस्पी मेरी ज़ात में है। मैं कुछ बढ़ने लगी है। इन्होंने कभी इजहार तो नहीं किया, बस इनके रवैयों से ही मुझे अंदाज़ा हो रहा था। इस राज से सिर्फ मैं या तुम्हारे पापा बाखबर थे, मगर न जाने कब और कैसे कैसरा आपा इस राज को पा गई और इन्होंने मेरी ज़िंदगी अजीरन करने में कोई कसर ना छोड़ी। आते जाते मायने खेज बातें, तंजिया जुमले, मैं बहुत तहम्मुल बर्दाश्त से
बर्दाश्त करती थी, यहाँ तक कि नफीसा आपा ब्याह कर हमारे घर चली आई। वो तसलसल से बोलते बोलते रुक गई। जरिश ने चौंक कर इन्हें देखा। जरिश की बेताबी अरूज पर थी। मामा जान, फिर क्या हुआ? कैसरा आपा हासिद फितरत के साथ साथ बड़ी सती सोच की मालिक भी वाक़या हुई थी। इन्होंने मेरे साथ साथ नफीसा आपा से भी बैर बांध लिया था। आपा तो हैरान रहती कि कैसरा इनसे इस कदर खार क्यों खाती है, मगर हर बार हम कैसरा की आदत कहकर टाल देते थे। सिर्फ हम ही लोग नहीं, कैसरा की फितरत से ताया की पूरी फैमिली भी बखूबी आगाह थी और अक्सर औकात इसके अंदाज़ो एतवार से हर कोई नाला रहता था। कैसरा की कुछ फितरत ऐसी थी, वो हर अच्छी और दिलपसंद चीज़ को सिर्फ अपने कब्जे में अपने ज़ेरे तसल्लुत देखना चाहती थी। नफीसा आपा की शादी से सईद भाई और सऊद भाई हमारे यहाँ अक्सर आने जाने लगे थे। वो लोग जब भी आते कैसरा आपा हमारे साथ मुस्तकिल आ जाती। शुरू में तो हमने बहुत नज़रअंदाज किया, मगर जब सईद भाई ने नफीसा आपा से कैसरा की चलाक फितरत की तरफ से नापसंदीदगी का तबसरा किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कैसरा आपा क्या चाहती हैं। दरअसल वो किस्मत पर शाकिर रहने वाली इंसान नहीं थी और सईद भाई अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत, सुलझे हुए अंदाज़ो एतवार समेत किसी भी मुतासिर कर सकने वाली सलाहियत के मालिक थे। कैसरा इनकी हर बार हमारे यहाँ आमद पर कुछ ऐसी हरकत कर जाती कि वो जिद हो जाते थे। इन दिनों इन्होंने नफीसा आपा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि वो इस लड़की को समझाएं, वरना वो किसी किस्म की रिश्तेदारी का लिहाज नहीं रखेंगे। आपा के इस्तफसार पर और करेत पर इन्होंने इंकशाफ किया कि कैसरा आपा ने इनसे खुले आम इज़हारे मोहब्बत फरमाया है। आपा ने अम्मा से बात करने के बजाय मुझसे बात की और कहा कि मैं कैसरा से बात करूं, और जब मैंने कैसरा से बात की तो वो हत्थे से उकर गई। मेरी जो इज़्ज़त अफजाई हुई इन्होंने वो अलहदा है। इन्होंने तो नफीसा आपा और सईद को भी ना बख्शा। मुझे अभी भी ये अल्फाज नहीं बोलते। सईद अहमद किस जहम में है? मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की जुर्रत कैसे की इसने? इतनी बेवकत हूँ? सईद अहमद को किसी चीज़ का गुरूर है, मिट्टी में ना मिला दिया तो इसका गुरूर तो कहना। इस धमकी को मैं वक्ती इश्ताल का सबब समझती रही, मगर आने वाले हालात व वाक़यात ने साबित कर दिखाया कि ये महज धमकी ना थी, तबाही का एक रेला था जो सिर्फ हमारी ही नहीं सईद अहमद की ज़िंदगी की तमाम खुशियों को भी खाकस्तर कर गया था। शाइस्ता बेगम ने पुरमलाल अंदाज में कहते अपनी पलकों को साफ किया था। फिर कैसरा आपा के दिल की कदूरत मजीद बढ़ी। हाँ, ताहिरा का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा होता था। ताहिरा कम गो धीमे मिजाज की मालिक लड़की थी और कैसरा आपा का इस पर मुकम्मल कंट्रोल था। चूँकि घर भर की सबसे छोटी ताया और ताई की वो तवज्जो और मोहब्बत इसे कभी मुयस्सर ना आ सकी जो कैसरा आपा या दीगर बहन भाइयों को मिली थी। जवाबन वो अपनी ज़ात में सिमटाई लड़की के रूप में सबके सामने आती थी। हम वक्त दूसरों के इशारों पर सर झुकाने वाली, माँ बहन भाइयों की जी हुजूरी करने वाली। हर कोई इस पर रौब रखता था। छोटी सी बात पर बुरी तरह डांट दिया जाता था, जिसकी वजह से इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ कि वो गैर अहम है। हाँ, घर से हटकर स्कूल और कॉलेज में बिल्कुल मुख्तलिफ ताहिरा के रूप में नजर आती थी। वो ज़हीन थी, इसके उस्ताज़ा इसकी जहानत की तारीफ़ें करते थे। वो खुश होती थी। ऐसा लगता था जैसे घर की जानिब से अपनी गैर अहम होने का मलाल मिटने लगा हो। मगर वो ज़हीन होने के बावजूद घरेलू सतह पर बुद्धू अहमक ही मशहूर थी, जिसने जो कहा कह दिया। जिसने जिधर चलाया चल पड़ी। ख़ास तौर पर कैसरा, जिसकी फितरत में दूसरों पर हुक्मरानी का जज्बा बददर्जा अतम मौजूद था। इन्होंने इसे कभी किसी लायक ही नहीं समझा था और ताहिरा बेगम इसके ज़ेरे असर रहती थी। इनसे खाइफ, इनके हर हुक्म पर फर्मा बरदारी से सर झुकाने वाली, जी हुजूरी करने वाली। कैसरा आपा का रिश्ता आया तो इन्होंने खूब वावेला मचाया, मगर हमारे ताया जान बड़े असूल परस्त इंसान थे। बेटी की फितरत से आगाही रखते थे। इन्होंने इसकी किसी एतराज़ को कोई अहमियत नहीं दी और इस तरह कैसरा आपा ब्याह कर ससुराल चली गई। मैंने और नफीसा आपा ने इनकी शादी होने पर खसूसी शुक्र अदा किया। कैसरा आपा की खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती, इनको ससुराल भी वैसी ही मतलब परस्त और हासिद फितरत की मालिक मिली। इनके शोहर तो हू बहू इन्हीं की फितरत के मालिक थे। कैसरा आपा जो रोते धोते रुखसत हुई थी, चंद ही दिनों में सारी ससुराल पर छा गई थी। मियाँ पूरी तरह इनकी मुट्ठी में थे। ससुराल नज़दीक ही था, इसलिए हर दूसरे दिन मेके के चक्कर लगाना वो अपना फ़र्ज़ अवलीन समझती थी। अहमद खालू सईद भाई की शादी करना चाहते थे। पहले तालीम और फिर बिजनेस के झमेलों में वो शादी का प्रोग्राम मुलतवी कर रहे थे। सईद भाई अब सेटल थे तो खालू जान और खाला जान हमारे यहाँ आए थे इनके लिए मेरा हाथ मांगने। क्या? बड़े सब्र से सुनती जरिश की चीख निकल गई थी। बेहद हैरानी से शाइस्ता को देखा। फिर खाला खालू बेखबर थे, मगर नफीसा आपा तुम्हारे पापा की मेरे मुतालिक पसंदीदगी से बेखबर नहीं थी। ठीक है, तुम्हारे पापा और हमारे दरमियान कभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई थी, मगर एक खामोश ताल्लुक तो था ही। सईद भाई के
इस रिश्ते से मुतल्लिक क्या जज्बात थे मैं कतई लाइल्म थी। अम्मा और अब्बा ने सोच कर जवाब देने को कहा। तो फिर मामा पापा से आपका रिश्ता कैसे हो गया? जरिश के लिए ये इंकशाफ किसी सूरत से कम इंकशाफ से कम नहीं था। इसकी हैरानी काबिल दी थी। अगले दिन ही सईद भाई हमारे यहाँ चले आए। वो कुछ परेशान और मुतफिक्र थे। मैं जो खुद ही उलझी हुई थी इनको देखकर नजर चुरा गई। ऐसे वक्त में जबकि रिश्ते की बात चल रही थी इनकी आमद कुछ ताज्जुब अमेज थी। जब इन्होंने गुमसुम कतई लाताल्की से भरपूर अंदाज अपनाया तो मुझे भी खटक सी होने लगी। वो मेरे साथ बड़े हलीम और शफीक रहते थे, ऐसा रवैया तो कभी ना था। मैं परेशान ही हो गई, मगर मेरी परेशानी का हल तब मिला जब इन्होंने मुझसे अपनी परेशानी शेयर करते इन्होंने रिश्ते से इनकार किया, बल्कि मुझसे शादी से इनकार कर दिया। जरिश की तवज्जो खास ही आलम था। फौरन चौंकी। इन्होंने आपसे क्या कहा? इन्होंने इस दिन मुझे बताया कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैं इनके लिए नफीसा आपा की तरह हूँ। इन्होंने मुझे हमेशा छोटी बहन समझा है। हाँ, इन्होंने ये बताया कि वो किसी को पसंद करते हैं और सिर्फ इससे शादी करना चाहते हैं। मामा, जरिश के लिए ये इंकशाफ किसी एटम बम से कम नहीं था। कौन थी वो? ताहिरा। जरिश को लगा इसके दिमाग के परखच्चे उड़ गए हों। जी। इसका दिल मुंह खोले का खुला रह गया था। हाँ, वो ताहिरा थी जिसे वो दिलो जान से पसंद करते थे। और ताहिरा चूंकि फैमिली में सबसे छोटी थी और ताहिरा से बड़े 2 भाई बहन थे जो अभी गैर शादीशुदा थे। सईद भाई ताहिरा की बारी आने के इंतजार में अपने घर वालों को ना जाने कब से टाल रहे थे। तलखी से बताते इन्होंने जरिश को देखा तो जरिश ने अपने चटकते अजाब पर काबू पाते हुए सख्ती से मुंह बंद कर लिया था। ये इंकशाफ सबसे भारी था। शारिक और नवेरा की शादी, जिसने भी सुना इंगश्ते बदनदान रह गया। फारूक साहब और हमीद साहब दोनों फैमिलियों के लिए अगले दिन नबील के फ़ोन से मिलने वाली यह खबर किसी धमाके से कम नहीं थी। आज ही रुकती है। हाँ, दूर के मेहमान जो रात को ही आ चुके थे नवाज और नवेरा की शादी समझकर। इनके अलावा नज़दीकी तमाम मेहमानों को भी मतू करना है फ़ोन करके। पहले से तयशुदा इंतजामात के तहत ही ये शादी हो रही है। हमीद साहब ने सुना तो इन्हें खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। अभी रात की ही तो बात है जब वो सारा ख़ानदान बरादरी वहाँ मौजूद है, मगर इस खबर का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना था। और सुबह सवेरे यह खबर किसी एटम बम से कम नहीं थी। सुबह सुबह रजा सो रहा था। हमीद साहब ने रिमशा और जुबैदा बेगम को बताकर फौरन एहसान साहब के घर की राह ली थी। फारूक चचा और सारी फैमिली के साथ वहाँ चंद मिनट पहले ही पहुंचे थे। इनकी भी कमोपेश वही हालत थी जो हमीद साहब की थी। कल भी तो करनी थी। नवेरा पहले तो नहीं मानी, मगर जब मैंने समझाया तो मेरी बच्ची ने इनकार नहीं किया। अल्लाह इसे अजर दे। शादी तय थी, सारा कुछ तो तय था। खानदान घर की बात है। रात ही फैसला किया था, वरना पहले इतला दे देते। खालदा बेगम खुद को खासा संभाल चुकी थी। इनके पेश नज़र इस इक़दाम से बेटी की बका ना थी बल्कि खानदानों की बका थी। वो अगर शारिक से बात ना मानती तो उम्र भर की दुश्मनी चल निकलती। नबील तो अभी तक नाराज था। कस्में वादे ना जाने क्या क्या करके इन्होंने इसे रोका हुआ था, वरना वो तो शारिक जमान के खून का प्यासा हो गया था। जोहा भाभी का मेका लाहौर में ही आबाद था। रात में साजिद भाई ने इतला दी थी। वो तो सारे हादसे से बेखबर थे। रात से कॉल सुनते ही दोनों बच्चों को लिए भाई की तरफ चली आई थी। रात को भी जो मेहमान आए हुए थे दोनों भाभियां और साजिदा बाजी मिलकर हैंडल कर रहे थे। इधर के इंतजामात थे। ऐसी भी क्या पर्दादारी। शारिक वगैरह में से किसी ने जिक्र नहीं किया। उजलत में फैसला किया है। रात रिफत कह रही थी कि सुबह वो आप दोनों के यहाँ आएगी। हमीद साहब के शिकवे पर बहुत मतानत से इन्होंने कहा था। फारूक साहब गुमसुम सर झुकाए बैठे थे। इन्होंने जो कहा था उम्र भर के लिए सर झुका दिया था। वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहे थे। शर्मिंदा और खजालत निगाहें मिलाने का याराना ना था। दोपहर तक नज़दीकी तमाम मेहमान आ चुके थे। नबील ने शादी के लिए पहले ही होटल बुक करवाया हुआ था, मगर नवाज के इनकार ने सब कुछ बखेर कर रख दिया था। अपनी पे दब्बे आने वाली परेशानियों में वो नवाज के इनकार के बाद होटल की इंतजामिया से माजरत भी ना कर पाए थे और अब यही बुकिंग इनके काम आ रही थी। बेशक इनके घर का कोई भी फर्द खुश ना था। हर कोई आंखों में आंसू लिए मसरूफ़ अमल था, लेकिन अपनी इज्जत के ख्याल से हर कोई ज़ब्त की सिल उठाए बर्दाश्त करने पर मजबूर था। मुकाबिल शारिक जमान ही नहीं, नवेरा थी इनकी अजीज़ तरीन बहन, इन खानदान की इज्जत वकार। वो अपनी बहन के लिए शारिक जमान के नाम का कड़वा घूंट बनने पर तैयार थे। इस सारे अमल में सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन नवेरा की ही हो रही थी, जो भाइयों से नजरें चुराने पर मजबूर थी। ज़िंदगी का एकदम रुख बदल गया था। पल पल मरते जीने के मराइल से गुजर रही थी। शारिक जमान अयाम गुज़श्ता में जो कर चुका था, अब जो करने जा रहा था वो किस इम्तिहान से कम नहीं था। नवेरा अपने ऊपर ज़ब्त की चट्टान उठाए अपनी भेंट देने पर मजबूर थी।
दोपहर ढलने लगी थी। नबीला और नवेरा को पार्लर ले जाने को चली आई थी साथ में अम्मा ने। मुझे नहीं जाना। क्यों? जोहा को तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। नवेरा का अगवा और निकाह की कार्रवाई पर सब अपने अंदर ही छुपा गए थे, मगर नबीला जो इसी दम बदम बदलती सूरत हाल से शदीद डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, इसने तलखी से नवेरा को देखा। खुदा के लिए अगर मेरा तमाशा ही लगाना है तो जान से मार दें, यूं मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ना ले। तमाशा बनकर रह गई हूँ मैं तो सिर्फ। वो अम्मा से बुरी तरह खफा थी। अम्मा के कहने पर वो वक्ती तौर पर शारिक से निकाह पर आमादा हो गई थी, मगर घर वापस आने के बाद तो वो हर खौफ एहतराब से आज़ाद हो गई थी। अम्मा से खफगी का इजहार इतना वाज़ह था कि रात से इसने इनसे क्या किसी से भी बात नहीं की थी। बारहा कोशिश के बावजूद इससे ज़ब्त की आखिरी हद तक फट पड़ी थी। नवेरा, अम्मा ने नबीला को बाहर जाने का इशारा करते इसके पास जगह पकड़ी। इनकी तबीयत बड़ी ख़राब थी, मगर बेटी की इज्जत के लिए वो गोया अपनी लाश घसीट रही थी। नवेरा, मेरी बच्ची, अपनी माँ को अब मज़ीद किसी इम्तिहान में मत डालना। जज्बात फुबरे हुए अजदाहा होते हैं जो डस लेते हैं। साजिद और नबील अपनी जज्बात का शिकार हैं। मेरे घर के दो ही सहारे हैं, साजिद और नबील। ये इतने बेगैरत नहीं हैं कि इतना कुछ सह जाएं। मेरे हाथ जोड़ने पर सब सह रहे हैं। मेरी कसमों पर ज़बानों पर कफन लगा लिए हैं इन्होंने। नवाज ने जो किया इसका ज़र्फ शारिक जो कर रहा है, अल्लाह इसे हिदायत देकर तुम्हारे हवाले से अब सारी ज़िंदगी वो जैसा भी है तल्ख कड़वा घूंट भरना है। वो तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत की चादर को तार तार होने से बचा लो। अम्मा ने रोते हुए नवेरा के सामने हाथ बांधे तो नवेरा ने तड़प कर लरजते बेकरारी से दोनों हाथ थाम कर सीने से लगा लिए थे। अम्मा नहीं, अगले ही पल वो इनके साथ लिपट कर बेयकीनी सी हो गई थी। बस आज जितना रोना है रो लो। शारिक ठीक है, किरदार के हवाले से कुछ खराबियां हैं इसने जो भी किया काबिल मजम्मत है, मगर अब वो तुम्हारा शोहर है। अच्छा या बुरा कबूल करो, आपा की तरबियत का रंग किसी न किसी मोड़ पर सामने आएगा। फिर वो अपने बाप का खून है, उससे जिद इंतकाम में जो भी किया। ये तसल्ली तो है कि तुम्हारे साथ मुखलिस है। बस तुम जहन को यकसू करो। दुनिया तो तमाशा देखने को खड़ी है, कम से कम तुम तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। अपने दिलो दिमाग को नॉर्मल करो, हकीकत को कबूल करने की कोशिश करो। इसके सर को थपथपाते इन्होंने समझाया तो नवेरा के दिल पर गोया मनो बोझ आ ठहरा था। शारिक से दुश्मनी ले लें तो ये 7 नस्लों तक चल जाएगी। औरत की इज्जत एक तन्हा औरत नहीं रहती, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, शारिक को तुम्हारे हक में मुबारक साबित करे। औरत एक दफ़ा बर्बाद हो जाए मर्द की नज़र से उतर जाती है, मगर वो तेरा दावेदार है। उठो शाबाश, नहा धो लो, फिर भाभी के साथ पार्लर चली जाना। इसने फ़ोन करके टाइम ले लिया था। इसके आंसू साफ करके पेशानी चूमते इन्होंने कहा तो नवेरा बेबसी से सर झुका गई। चाहत भरी ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात के लिए जिल्द-2 का मुतालिया कीजिए। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। ये चाहते हैं ये शिद्दतें कि सीज़न 1 जो जिल्द अव्वल है वो आज कंप्लीट हो चुकी है, उसकी लास्ट एपिसोड है। इंशाल्लाह कल से या अगले दिन से हम दूसरा सीज़न जो जिल्द 2 है वो रीड करना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नए सीज़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।